اگر کملی والے کی رحمت نہ ہوتی تو قسمت کے ماروں کا کیا حال ہوتا. رسول خدا کا سہارا نہ ملتا تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا. نہ یہ پھول کھلتے نہ کلیاں مہکتی، نہ گلزار ہنستے نہ گلیاں مہکتی. نبی کے پسینے کی خوشبو نہ ملتی تو دلکش بہاروں کا کیا حال ہوتا. اگر کملی والے کی رحمت نہ ہوتی. وہ آقا وہ مولا وہ داتا ہمارے، خدا کے پیارے خدا کے دلارے. اگر کملی والے کی رحمت نہ ہوتی. بس جزاک اللہ کو آگے سے یاد نہیں. شکریہ بہت. سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہترین بہت یوسف بھائی، آپ خوبصورت، ماشاءاللہ بہت خوبصورت. زبردست. اللہ پاک آپ کے ذوق کی سلامت رکھے اور آمین. آپ تشریف لائیں اور پڑھتے رہیں، اور بڑا خوبصورت کلام تھا، زبردست. آمین آمین. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عمر رباب صاحبہ تشریف لائی ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طرف سے بھی آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہاں کو وعلیکم باجی کو ایک السلام. نعت ہی سن لو. وعلیکم السلام. باجی انہوں نے کتنے نعت آتے یوسف نعت ہی سن لو آج. نہیں، ڈاکٹر صاحب کو سنو، ڈاکٹر صاحب کا کلام سنو. نعت سنیے تو یوسفی بھائی ہے نا، وہ سناتے ہیں. انہاں کو سن لئیے. ادھر گیا تھوڑے تے تسی ستے پے ہو تے کدو ہن اگے گیا تے نہیں ہو تسی حاضر ادھر میں برانچ فون پہ سی، میں میوٹ لا کے نا فون سن رہی تھی، ستی نہیں سی. میں کیا پتہ نہیں براڈ تے خراٹیاں دی آواز آ رہی سی. نہیں نہیں، میں باجی ستی ایک نہیں سی. گل تے فون دسو. پہ وہ سی اپنا السلام علیکم ٹیلی باجی. فون آ گیا سی میرا، تو پھر میں میوٹ لا کے تے فون کرن لگ. بھائی السلام آپ آئے علیکم. تھے براڈ پہ؟ اچھا، مفتی محسن صاحب آئے تھے، بڑے اچھے موضوع پہ بات ہو رہی تھی، اور پھر یہ تھا میری کال آ گئی تو میں میوٹ لگا کے پھر چلی گئی تھی. بھائی السلام آج آپ علیکم. کے پاس کیا موسم؟ ڈاکٹر صاحب کدھر ہے؟ السلام ڈاکٹر علیکم صاحب باجی. السلام علیکم. ان کے کوئی پیشنٹ آئے ہوئے ہیں میرے خیال ہے. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کے بعد نا آئی تھنک فجر کا ٹائم ہے. پیشنٹ ڈاکٹر صاحب کا علاج کر رہے ہیں. نہیں، باجی کی فجر کا حال ٹائم ہے؟ نہیں ہے. میرے کو پیشنٹ ڈاکٹر صاحب کا علاج کر رہے ہیں. باجی کی حال ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بول رہے نے جویں پیشنٹ بول رہے ہوندے. میں وہی کہہ رہی ہوں، پیشنٹ لگ رہا ہے باجی کی ڈاکٹر صاحب حال کا ہے؟ علاج کر رہے ہیں. باجی کی حال ہے؟ بدیا، ودیا. بہت بدیا. اچھا باجی تسی اپنی زندگی چ کوئی تہاڈا ایسا دن گزریا جہدے وچ تسی ہسے نہ ہو؟ اچھا کہ سوچا کہ یاد نہیں ہے. میرا خیال سی جب میری امی فوت ہوئی شاید 2 دن سے کہ نہیں ایسی. نہیں مینوں لگدا اس دن بھی تسی دال آ کے ہس لیا ہونا کتے نہ کتے اگے پیچھے ہو کے. استغفراللہ، نہیں اس دن نہیں ہنسی سی. اچھا ڈاکٹر اچھا. صاحب تسی ماشاء اللہ واقعی تسی ڈاکٹر ہی ہے. اپنا نا اس وقت میں چھوٹی سی نا، مطلب چھوٹی نہیں سی، لائک 14-15 سال یا 16، یعنی 9ویں 10ویں، مطلب پھر کالج دی لائف اس دوران نا، تے میں اینا ہسدی ہوندی سی، بہت ہسدی سی اس ٹائم. ہن تے میں ہسنا تے مطلب بہت گھٹ ہو گیا ہن میرا. تے ہر گل نا، مطلب میرے سارے کہندے سی کہ پہلے
ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਹੱਸ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ रहती थी, नाल में हंसती रहती थी। तो जब किसी की कोई फौतगी भी होती थी ना, तो मुझे बड़ा अफसोस होता था कि कोई फौत हुआ है। कि ये नहीं था कि मुझे अफसोस नहीं होता था, लेकिन वो जिस तरह रो रहे होते थे ना, कि औरतें सर के ऊपर हाथ रखा हुआ कोई रोती पीटती आ रही थी तो मेरी हंसी नहीं रुकती होती थी। तो मेरी अम्मी कहती थी एनू नहीं नाल लेके जाना। तो वाकई अब सही कहते हैं कि मेरी हंसी जो है ना वो नहीं रुकती है। सही है। बस फिर आपकी मौजूदगी में ना एक आपने दुआ करनी है हमारे साथ इस वक्त। बहुत ही माया नाज और अजीम और आला व अरफा शख्सियत मौजूद हैं, ये सुहेल अहमद साहब। इन्होंने माशाल्लाह 135 किताबें लिख दी हैं अब तक, और 3 जो है ना वो उस पे सब्जेक्ट्स में ये PhD कर चुके हैं, और 5 जो है वो MA कर चुके हैं, और 12 ला ये क्वालिफाइड हैं। CSS का इम्तिहान पास कर चुके हैं, लेकिन सियासी कोई सरकारी कोई इन्होंने ओहदा नहीं लिया। बस अब दुआ करें, अल्हम्दुलिल्लाह इनका आगे पूरा मिशन है कि ये मैट्रिक कर लें, तो अल्लाह ताला इनको कामयाब फरमाए। मैट्रिक आर्ट्स में करना है या साइंस में? ये अपनी गाड़ी में करेंगे मैट्रिक। मिडिल कर लिया हुआ वैसे, बाय द वे। नहीं, वो मैट्रिक के बाद करेंगे ना, अच्छा, स्टेप बाय मैट्रिक के स्टेप बाद। जाएंगे। सही सही, ठीक हो गया। नहीं, हमारी बड़ी मिडिल दुआएं करते रहे हैं, हुआ नहीं मिडिल। अच्छा, मिडल करते रहे हैं, चले, बड़ी अच्छी बात है। ये है कौन से वाले हैं? मोहम्मद सुहेल साहब जो जिन पे अल्लाह का वो लगा, वो वाले? हाँ जी, ये ये मोहम्मद सब सैयद गोल साहब जो है गप्पा ना, खाया तब हुआ है। अच्छा जी। तो और इनके पास डिग्रीज के अलावा और भी कोई मतलब है? वैसे टेक्निकल भी कुछ किया होगा और इन्होंने। फैम है जी ना टेक्निकल वाला। इनको गाड़ी चलानी आती है, अच्छा, और ट्रक चला लेते हैं। जहाज जी जी, जहाज नीचे बैठ के खड़े होके देख लेते हैं जहाज का भी। जहाज चला नहीं लेते, जहाज बन लेते हैं। जहाज बन जाते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व ਇੰਨੀਆਂ बरकातहू। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, किन्ने? ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। अच्छा जी, इन्होंने दरसे कलामी जेड़ा ना वो नहीं फिर कीता इन्होंने जे। सो साहब बोल क्यों नहीं रहे? सुहेल साहब, आपके पास 3 मिनट है, मुझे पता है आपके पास टाइम बहुत कम होते हैं। आप 2 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर लें, ताकि मैं 1 मिनट बाद आपको नहीं तो 3 मिनट इनके मतलब कम इनके पास हाँ टाइम जी, है। नहीं, मतलब फोत नहीं होने वाले, वही फोत नहीं होने वाले 3 मिनट में। हाँ जी, इनके पास इनसे मैसेंजर क्या हाल है मेरे दरसे निजाम वालेकुम सलाम। इनसे प्यारे दरसे प्यारे निजामी नहीं हुआ मुसलमान तो दरसे जनानी कर लिया फिर। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ सुहेल ਦਾ साहब, ਵੀ मैं आपको ਐਸਾ याद है करा दूं, मीठे मीठे के साथ 50 छितर वाला भी कहना था। हाँ हाँ दरसे जनानी। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਐਸਾ ਰੂਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 85 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਦਾਇਤ ਤੋਂ। खुदाया। लेकिन सुहेल साहब को ये एजाज हासिल है, इन्होंने 23 जिल्दें सुरहानी खजाइन की मिर्जा साहब की लेकर सारी मिटा के इन्होंने अपनी लिख दी उस पे। जी सुहेल साहब आप भी तो कुछ बोले। मैं जी सुन रहा हूँ, चिट्टा अनपढ़ हूँ जी, किताबें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लिखी हैं, लेकिन वो रख के कहीं भूल गया हूँ लिख के ना, तो याद भी नहीं आ रही है और डिग्गी कि में क्या पढ़ी है, लिखा था। मैं डिग्गी में पढ़ी है आपकी डिग्गी में। हाँ जी, ये चिट्टे अनपढ़, वो आपने एक ना देखी होगी किताब, एक कलम निगार था, तो उसने कहा था कि मैंने घोड़े के ऊपर किताब लिखी है, घोड़ा कैसे दौड़ता है। ठीक है, तो वो किताब जब पढ़ी गई ना, तो उसके पहले सफ़े से लेके, पहले तो उसके सफ़े पे उसकी इंट्रोडक्शन थी, और दूसरे सफ़े से लेके 598 सफ़े तक पता क्या लिखा हुआ था? घोड़ा कैसे दौड़ता है? दगड़ 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 दगड़। मैं नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है, इन्होंने जो मेरे बारे में आपसे बयान किया वो बिल्कुल ठीक है, उससे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं। मेरे भाई सच बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम सलाम।
नहीं भाई, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद मोहतरम, क्या हाल है आपका? ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਪਾਕ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਈਏ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਵਾਬ ਹੈ ਟੈਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਜੇ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਿਊਟ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਨੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਮਖਸੂਸ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ मैं क्या ਇਹਨਾਂ सबसे ਆਪਣੇ पहले ਵਕਤ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਕਣਕ। ਅੱਛਾ ਨਈਮ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਆਹੋ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਰੁਖ ਆਬਾਦੀ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਲਾਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਨੀ ਯਜ਼ੀਦ ਸੀ ਤੇ ਬਨੂ ਉਮਈਆ ਨੇ ਰਸਮ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। अच्छा ਬਕੌਲ ਅੰਜੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਲੱਭੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਣੀ ਜੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਝੂਠਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੱਢ ਆਣ ਸਕੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ PhD ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, PhD ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਇਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ PhD ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸਾਂ, ਕਿਹੜਾ हो ਰੋਲਾ रही है जी। ਲਿਟਰੇਚਰ ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਕਿਸੇ जी सुहेल भाई जवाब दें। हाँ जी, क्या जवाब देना मैंने? मैंने तो थ्रैशर के आपको बता ऊपर रही हूँ। थ्रैशर के ऊपर मिर्जा थ्रैशर साहब की पे। कोई मिर्जा साहब की कोई तहरीर। जी इनकी अपनी बुक्स में शायद बना हो थ्रेशर, तस्वीर बनी हुई वही लगा दें। मिर्ज़ा साहब की तहरीर का तो ये है, उन्होंने एक दावा किया हुआ है कि जी मेरे दावे की जड़ जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे जिंदा जाना साबित कर दें तो मेरे सारे दावे झूठे हैं। अच्छा मैं जो समझा हैं जी कि सारे में मैं समझा कि मिर्जा साहब की जो तहरीर है उन्होंने दावा किया हुआ है कि मैं थ्रैशर भी हूँ। बताएं जी। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਸਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਾਂਗਾ ਜਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਰੋਲਾ ਪਾਤਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵੇਚਣਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਨੀਂਦਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਚੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜੈ ਲੋ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਹੀ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗਾ ਖਰੀਦੇਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ मेरा तो बता मेरी गाली आई है हाँ जी पर बेचड़ी जरूर है। हाँ और ना मिर्जा साहब के दावे ली गाली ये आई है एक दफा कहने ने कोई मसले ही कोई मान्यात नाल इसना तल्लो की कोई नहीं दूसरी दफा कहने मेरे दावे दी जड़ ओ वे जिदा मान्यात नाल तल्लो की कोई नहीं ना इस्लाम नाल तल्लुक ना ईमान नाल तल्लुक इस्लाम पहले भी मुकम्मल सी बाद विच मुकम्मल सी पेश गोई ना भी होंदी ते मुकम्मल सी है वे तभी मुकम्मल है ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹਦਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਦਾਵਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰਹਿ ਬੰਦੇ ਈਮਾਨ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ बिल्कुल। ये तफहीमुल कुरान में लिखा हुआ है ना अपना मौलाना मदूदी साहब ने कि किन किन वजूहात पर अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाती हैं और फिर उनकी क्या मतलब उस वक़्त लॉजिक होती है, उनकी क्या ज़रूरत होती है। तो जब दीन मुकम्मल हर चीज़ मुकम्मल तो इसके आने का तो कोई जवाज़ ही नहीं है। तो वो बेचारे आया भी नहीं है। नहीं नहीं भाई दे वो रह ही नहीं सकता। क्यों नहीं भाई? क्या कहा मैं नहीं सुना आपकी बात मैंने कहा कि आपके होते हुए उसकी बेचारे ने रह ही नहीं सकना था। आना पैंदा सी मजबूरी सी है ना। वैसे क्या समझते हैं, कल मैंने मिर्जा साहब की नफ्सियात के ऊपर काफी मतलब बोला भी, क्या थी मिर्जा साहब की क्या नफ्सियात थी क्या, मतलब आप क्या समझते हैं कि बारी बारी जरा मुझे देखिए इनका नफ्सियात का तल्लुक दोहरा है मिर्जा साहब का
बड़ा करें नहीं भाई दोनों को, नफ्सियात इनमें पाई जाती हैं। नहीं भाई को बड़ा और जब करें। नफ्सियात गुड मोड हो तो फैसला करना मुश्किल हो जाता हमारे लिए। कौन सी नफ्सियात के तहत मिर्जा साहब ने बात किया? अब मर्दाना नफ्सियात हैं वो अलग है, जनाना नफ्सियात अलग है। नहीं मतलब जो इतनी वो बीमारियों में मुब्तला था और उसके साथ साथ उसकी जो कैफियत बताई जाती हैं खुद वो मतलब अपनी जुबान से और ये सारा कुछ, तो मतलब उसको क्या एक डमी की तरह खड़ा किया गया था, या मतलब उसके पीछे कोई बिल्कुल वो एक पपेट था जिसको मतलब वो खिलाया जा रहा बिल्कुल। था कि आप वो था, देखें या ना, क्या चीज थी? आप देखें वो दौर कौन सा था? दौर था जी बरतानिया हुकूमत थी, जिनका पहला असूल था आपस में लड़ाओ हुकूमत करो। जी। आपस में लड़ाओ और हुकूमत करो। हम्म। और ये लड़ाने के लिए पैदावार थी, ये आपस में लड़ते रहे। ठीक है, तो लाइक मतलब उसको यानी उसका अपना रोल क्या था, कि क्या वो खुद एक फितना था या उसको किसी बड़ी ताकतों ने एक पपेट को मतलब किया था, उसका क्या प्रोवाइड किया गया नफ्सियात था। था? तारीख के झरोकों से जो बातें सामने आती है ना, प्रोवाइड किया गया था बतौर फितना के आपस में लड़ाने के लिए। फितना लाजमी नहीं होता कि हर वक्त एक ही शक्ल में मौजूद हो। उसकी शक्ल एक नहीं रहती, बदलती रहती है। यह तो माहौल पे डिपेंड करता है, जो माहौल है उसके मुताबिक उसको डाल दिया जाता है। सही। जी यूसुफी भाई आप क्या कहेंगे? आप देखें कि यूबी के दौर में जो सबसे ज्यादा जो फितना बर्पा करने वाली चीज थी, शराब और शबाब थी। उस वक्त के दौर में आपको ऐसे फितने नहीं मिलेंगे। वहां पर खरीदो फरोख्त की जितना भी जरिया था ना, शराब और शबाब था। ठीक इस है। दौर में आके फितने की शक्ल बदल गई है। तो ये जिस चीज को खरीदा जाता है उस लेवल पर बात होती है ना। जिस चीज में तकरीब कारी की जानी हो ना, उस मयार पर जाकर फितना अंगेजी की जाती है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, अब बिल्कुल आपने ठीक है। हुक्मरानों को खरीदना है तो उनके लेवल पर जाकर तकरीब कारी होगी उनमें। यानी आपका उलमा कहने के का मतलब उलमा है, के साथ आपने उलझना है ना दीन में, तो इस लेवल पर जाकर होती है फिर। यानी हर दौर का फितना डिफरेंट होता है, क्या कहेंगे मतलब कैसर साहब आप? हर मामले का फितना डिफरेंट होता है। हर दौर में भी डिफरेंट तरह का फितना जो है उस माहौल बिल्कुल, के शक्ल मुताबिक। बदल जाती है, राज जी मकासद नहीं बदलते। बिल्कुल सही, बड़ी खूबसूरत बात की। जी मलक कैसर साहब आप क्या तबसरा करेंगे इसके ऊपर? जी मलक कैसर भाई, मलक कैसर भाई को बड़ा कर दें, जी आपकी क्या आवाज कहा है नहीं आ आपने? रही। सॉरी आपने क्या कहा है? मैं जरा अवे था। अच्छा अच्छा। ऑन जी पोजिशन भी नहीं भाई तंदूर बताएं। तंदूर बदलता है या सिर्फ रोटियां ही बदलदियां ने लानियां? देखो जी, कल जड़ा ना यूसफी साहब की दावत है, तो यूसफी साहब ने आना कोई नहीं। काले रंग का बकरा मैं लैके आया, बिल्कुल सफेद अखां वाला। उन्होंने ज़िबा किया ते पूरा फ्रिज ही लगा दिता। मसाला लाना सी कि फ्रिज विच लाना सी? अच्छा मलक कैसर हो? हाँ जी। ਇਹ ਦੜੇ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਕੂਕ ਚ ਹੋ ਵੰਨੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਹੀ ਕਰੇ ਕਿ ਫੇਸ਼ੋ ਤੇਰਾ ਮੰਡ ਕੇ ਲੈ ਜਾਉਂ। ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੜਕ ਨਾ ਕਪਾਵੇ। ਕਣਕ ਪਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਕੱਪਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੇਚਣਾ ਵੀ। ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सही कह रहे हो, बिल्कुल ही। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਕਦੇ ਵੰਨੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਕਦੇ ਵੰਨੇ। ਦਿਹਾੜੇ 5-7 10 ਹੀ ਹੋਣੇ ਟੋਟਲ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਂ ਕਣਕ ਕੱਪਦੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਪੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੋਲੀ ਉਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੀ